हेलो एंड वार्म वेलकम टू आवर शो बज़ में ख़वातीन। मैं हूँ रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। In our program we often discuss about women's issues, women's contribution, women's different shades, blah blah blah. Today we are going to discuss women's education and better parenting. Women's education is important for many reasons. It has profound impact on society and child rearing, child upbringing. कहते हैं ना, एक मर्द की तालीम सिर्फ एक फर्द की तालीम होती है, जबकि एक लड़की की, एक औरत की तालीम दो खानदानों की तालीम होती है। एजुकेशन provides women with knowledge, skills and confidence, and it helps them to develop a sense of self-worth and independence. Education eradicates the gap between genders and promotes equal rights, equal opportunities. Educated girls contribute more to their family's income and breaks the cycle of poverty. Education empowers women. And educated mothers are more skillful in parenting. They provide nurturing environment to their kids, and they are well aware about health care and nutrition. As we all know that we are living in the era of modernization. Modernization do have both ill effects as well as positive effects on child rearing, on child upbringing. Nowadays, children are overexposed to the social media, internet and technology, which have all related negative aspects and negative effects on them, like isolation, anxiety, depression, aggression. बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जा रहा है। आजकल अक्सर पेरेंट्स ये पूछते हैं हमारे बच्चे एग्रेसिव क्यों हैं, उनमें इतना एग्रेशन कहाँ से है? Why not? Because they are watching aggressive content on screen, on their cell phones, smartphones, internet, which are provided by their parents only. इसके जो जिम्मेदार है वो तो पेरेंट्स ही है। अक्सर अगर हम माओं की बात करेंगे, माएँ अपने काम में बिजी रहती हैं, घरेलू काम हो, ऑफिस का काम हो, तो अपना पीछा छुड़ाने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देती है विदाउट थिंकिंग दिस कि बच्चा कौन कौन सी साइट एक्सप्लोर कर रहा है या बच्चे ने कौन कौन सी साइट एक्सप्लोर की और उसका जो कंटेंट था क्या वो उसकी एज के लिए, उसकी समझ के लिए, उसकी उम्र के लिए अच्छा था। बच्चे गेमिंग में रहते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर बच्चा अपनी एज के हिसाब से गेम खेल रहा है तो ज्यादा बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर यही बच्चा अबव हिज और हर एज गेम खेल रहा है तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। लिहाजा यहाँ ड्यूटी बनती है पेरेंट्स की, पर्टिकुलरली एक रोल बनता है, क्रूशियल रोल, एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ए मदर। मदर शुड टीच देयर चिल्ड्रन हाउ टू बी सेफ ऑन इंटरनेट, हाउ टू यूज इंटरनेट सेफली, and what is cyberbullying, how to protect personal information, blah blah blah. Means there is a need of proper supervision of parents. Let's talk in detail about this with our guests of today. Today we do have Dr. Shafia Wani. She is faculty member of Department of IMPART, and besides her there is journalist Shireen Naman. आप दोनों को मेरी तरफ से प्यार और खुलूस भरा आदाब और बहुत बहुत वेलकम। I would like to start with Dr. Shafia. How does girls' education impact her choices and opportunities? Ji, thank you very much. As you described this theme in a very comprehensive way, जैसे आपने बताया कि कितना बड़ा जो असर है एक फीमेल का जो है एजुकेशन में, और उसके जो जितने भी पैरामीटर्स है, जितना भी डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, जो विमेन्स एजुकेशन है, उसका जो असर है पूरी सोसाइटी पे है, पूरे घर पे है और पूरी कौम पे है। एक women का जो contribution है that is immense, that starts from early in the morning till late in the night. अगर हम एक family component से देखें, एक माँ जो सुबह उठती है और सुबह के 4 बजे 5 बजे से लेके शाम के 12 बजे तक उसका जो रोल रहता है, खा वो घर में काम करती हो या बाहर भी काम करती हो, not only late night, not only late night, it is overnight also. Yes, रात में भी ये प्रोसेस चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, रात में भी ये प्रोसेस चलता है। तो उसका जो एजुकेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के दौर में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उस हवाले से दे पाएंगे सोसाइटी को, और जब हम देखते हैं प्रोडक्टिव फैमिलीज़, प्रोडक्टिव सोसाइटीज़, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन एक फ़ीमेल का होता है, जिसने उस स्टेज को क्रॉस किया हो, तो उसने समझा होता है, तभी जाके वो अपने बच्चों में वो इनकलकेट कर पाती है, अपने वर्क प्लेस पे इनकलकेट कर पाती है और अपने इर्द गिर्द के माहौल पे इनकलकेट कर पाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
for a women to have education, to have every facility around, so that वो जो उस को जो है पूरे जो है कायनात में फैलाए। और हमारे पास एम्पल एग्जाम्पल्स है जहां हमने देखा है कि औरतों का कंट्रीब्यूशन जो है उसकी वजह से सोसाइटीज कितना प्रॉस्पर करती है। शिरीन जी, what are the economic and social benefits of educating a girl, educating a woman? देखिए, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में पहले कहा कि एक औरत को पढ़ाने लिखाने से उसकी आने वाली सारी नस्ल पढ़ी लिखी हो जाती है, ये तो हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप सोशल बेनिफिट्स की बात करें तो आजकल मैं आपको कहूँगी लड़की को पढ़ाना लिखाना डेफिनेटली उसकी आने वाली जनरेशन को तो वो हेल्प करेगी ही इन ग्रोइंग, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एक मेंटल ग्रोथ होती है, क्योंकि आजकल जितनी भी लेडीज हैं वो पढ़ी लिखी और एम्पावर्ड तो हैं, लेकिन वो लिटरली इलिटरेट हैं। अगर हम उस बिकॉज ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीन ऑन बोथ साइड्स, अगर हम दूसरी तरफ की भी बात करें तो औरतें दे फेल टू अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन बिसाइड्स बीइंग एजुकेटेड। आप देखिए काफी ज्यादा हमारे पास एजुकेटेड फैमिलीज हैं जहां दोनों माँ बाप वर्किंग हैं, लेकिन बच्चे उनके मेंटली बहुत डाउन हैं। लिहाजा मेरे हिसाब से अगर आप औरत को एक पढ़ा लिखा रहे हैं, सबसे पहले उनका दिमाग एक लिबरल माइंडेड से एक माइंडसेट लिबरल आना चाहिए उनके दिमाग में, तभी जाके उनका पढ़ा लिखा होने का कोई फायदा होगा आने वाली नस्ल को पढ़ाने में। अब रही बात इकोनॉमिक की, इकोनॉमिक के तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। आप देखिए रूरल एरियाज से लेके वहां लड़कियां इवन आर्टिसंस हैं, सो एवरीवन इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ऐसी बात नहीं है। वहां के आर्टिसन से लेके अगर आप शहर की बात करें तो पायलट्स तक हमारी औरतें बन चुकी हैं। डॉक्टर शाफिया, टेल मी हाउ टू एड्रेस the issues of gender based violence in schools particularly? जी देखिए ना, जैसे मैंने कहा कि जो स्कूल्स में जो है बच्चे बच्चियां आज के डेट में जब हम देखते हैं कि वायलेंस बहुत ज़्यादा है, जेंडर बेस्ड वायलेंस का जो है, तो उसमें हम बेसिक्स पे जाके फोकस करेंगे। जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे जो दो बहुत ही पॉजिटिव पिलर्स होते हैं, जो बहुत ही इम्पैक्टफुल पिलर्स है, वो टीचर और बच्चा है। तो हमें टीचर्स और बच्चे पे फोकस करना है। बच्चे को अपने हकूक के बारे में पता होनी चाहिए। वी शुड टॉक अबाउट चाइल्ड राइट्स, गिव देम इनपुट्स ऑन चाइल्ड राइट्स। और उसके साथ साथ हमारे जो टीचर्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो आज बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर टीचर्स ओनली, बट यहाँ पे आज जो दुनिया बहुत आगे चली गई है, तो हमने टीचर्स को कैपेसिटेट करना है। सो वी शुड हैव कंप्लीट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, जहाँ पे हम वैसी ओरिएंटेशन करें जिसपे टीचर्स के साथ बैठ के हमें इस बारे में बात करनी है। देखिए ना, हमारी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फोकस है कि हमने जो एक वो कॉन्सेप्ट रखा कि हमें किसी भी चीज़ में बच्चे को इन्वॉल्व नहीं करना है, चाहे वो घर की डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो पूरे कंट्री की डिसीजन मेकिंग हो। एवरी चाइल्ड हैज़ अ रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उसमें अगर आप देखेंगे भी आजकल जो है अलग अलग कंपोनेंट्स में बोलते हैं कि बच्चों के साथ सभा कीजिए, बच्चों के साथ मीटिंग करिए। जो हम प्लानिंग करते हैं ना, बिकॉज बीइंग पार्ट ऑफ द प्लानिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिससे मैं बिलोंग करती हूँ, जब हम गाँव लेवल पे भी बात करते हैं, एक गाँव का जो बच्चा है उसका जो गांव का प्लान बनेगा उसको उसमें इन्वॉल्व रहना है, बिकॉज बच्चे का रोल है, औरत का रोल है, एक मर्द का रोल है और सोसाइटी का रोल है। इसी तरह जो हमारे गांव का स्कूल है या शहर का स्कूल है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हमें जो दोनों बच्चे और टीचर पे फोकस करना है, दोनों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट्स रखने हैं जिसको फॉलो करना है। हमारे स्कूल में एडोलसेंट गर्ल्स है, उस पे फोकस करना है। टीचर हमने देखना है कि हम टीचर्स को कैसे ओरिएंट करें कि हमारी गर्ल्स जो है एडोलसेंट एज ग्रुप में उनका एक स्पेशल टाइम होता है। सो वी हैव टू मेक देम कंफर्टेबल, गिव देम स्पेसेस, वी हैव टू प्रोवाइड देम separate toilet for boys as well as girls, and how to use the see आज की डेट में menstrual hygiene management पे बात करना बहुत जरूरी है, चाहे पेरेंट्स घर पे हैं, चाहे टीचर स्कूल में हैं, एंड वी हैव टू गिव देम स्पेसेस, कंफर्टेबल स्पेसेस, जहाँ पे बच्चे बच्चियाँ अपने हुकूक तो जान पाए, बट टीचर्स के साथ एक ओरिएंटेशन ऐसा हो, कैपेसिटी बिल्डिंग का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए ताकि वो जो है बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए, और हमारे टीचर्स का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। What is the basic cause of excessive internet and social media?
देखिए, जो बेसिक कॉज की आपने बात कही है, आज तो एवरीथिंग इज एक्सेसिबल ऑन योर फिंगर टिप्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आप चाहे देखें, इन फैंस हैं वो अपना फीड भी बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड पोएम्स राइम्स वगैरह के थ्रू लेते हैं। जैसे कि आपने कहा कि माँ बाप छुटकारा पाने के लिए बच्चे को फोन थमाते हैं। स्पेशली अगर सर्विस क्लास वर्किंग पेरेंट्स की बात करें तो उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है टू मॉनिटर द स्क्रीन टाइम ऑफ देयर चिल्ड्रन। इसके हेल्थ एलिमेंट्स अगर हम देखें तो बच्चे का जो ब्रेन मेमोरी लॉस वगैरह आप देखते हैं, वो भी इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत अहम चीज है, बच्चे जो पेरेंटल कंट्रोल है ना, मॉनिटरिंग द कंटेंट, जो आपका बच्चा क्या देख रहा है। क्योंकि पेरेंट्स इतने बिजी हैं, उनके पास वो वक्त ही नहीं है देखने का कि हमारा बच्चा किस किस्म का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। इसमें एक और चीज भी आती है, अगर जो आपके टीनेज बच्चे हैं उन पे आप ज्यादा भी ये पीप इन उनके फोन में ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चे को पेरेंट्स के तई ट्रस्ट बिल्कुल रहता नहीं है। उनको लगता है कि हमारे माँ बाप हम पे भरोसा करते ही नहीं है। जब आप उनको एक बार बताएं कि ये गलत है, अगली बार आपकी अपब्रिंगिंग में इटसेल्फ एक ऐसा मैजिक होना चाहिए कि वो खुद आपको आके बताए कि मैं ये चीज देख रहा था, आपको कैसी लगी, मैं ये चीज देख रहा था, आप मुझे बताएं। तो मेरे हिसाब से पेरेंटल जो कंट्रोल, एक ऑनेस्ट रिलेशन होनी चाहिए, बिल्कुल एक फ्रेंडली रिलेशन होनी चाहिए। माँ बाप को बच्चे को फोर्सफुली अपना पासवर्ड चेंज करने पर फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप मेरा फोन मत देखो, या ही शुड नॉट पीप इन टू हिज व्हाट्सएप, बिकॉज एवरीबडी। और माँ बाप, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हैं, आप डेफिनेटली लिबरल माइंडेड होंगे। आपको ये समझना है कि हम अपने बच्चे के फ्रेंड्स हैं, रादर देन हम उनपे कोई ऐसी वो छुरी नहीं है उनपे कि आप अपना व्हाट्सएप मुझे दिखाओ, पूरे दिन की रिपोर्ट मैं आपको देखूंगा। ही शुड हैव कंप्लीट राइट टू लिव देयर लाइव्स। वो तो है, लेकिन फिर भी मॉनिटर तो करना है पेरेंट्स को। बिल्कुल मॉनिटर करना है, कंटेंट कंट्रोल। बच्चा उस वक्त पे पेरेंट्स की बात को ले सकता है, नो डाउट। जैसे कि अगर छोटा बच्चा है, वो एक आग को देखते उसकी और वो आकर्षित हो जाता है, टेम्प्ट हो जाता है, वो बोलता है मैं छूंगा, लेकिन पेरेंट्स उसको कैसे अलाउ करेंगे उस आग को छूने से? बिल्कुल वो वैसे ही कंट्रोल करना है अपने बच्चे का कंट्रोल तो वैसे ही करेंगे जब वो मॉनिटर करके उनसे थोड़ा सा हिसाब किताब लेंगे कि क्या है। अक्सर बच्चे कुछ गलत करके फिर वो मैसेज डिलीट कर लेते हैं, तो मैसेज डिलीट क्यों हुए, दिस इज द क्वेश्चन। और ये भी पूछना है, ये भी आप तभी पूछ सकते हैं जब आप फ्रेंडली रिलेशन में हो। जी ना, इसी को आई वांट टू टेक इट फॉरवर्ड कि जो माँ बाप अगर बिजी भी हैं, मगर मुझे लगता है कि आके वो बच्चे के साथ टाइम गुजार सकते हैं। बच्चे के साथ उनका एक जो बॉन्ड है वो बनाना बहुत जरूरी है, बहुत फ्रेंडली बॉन्ड बनाना है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स बहुत फ्रेंडली रहे और बच्चे वो लिबर्टी ले ले, बट एक इक्वल रेशियो में एक बॉन्ड बनाना है, ताकि बच्चे जो है उनको पता हो कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द लाइन एज अ पेरेंट। देखिए, जब वो अपने पेयर ग्रुप के साथ फ्रेंड है और अपने पेरेंट्स के साथ फ्रेंड हो, वो लाइन उनको पेरेंट को ही समझाने की जरूरत है, बट उनको फ्रेंडली उनके साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, ताकि वो जो है हार्श वे में उनको ना समझाए कि मोबाइल के इल यूजेस क्या है। ये बहुत आपने अच्छी बात कही कि हार्श वे में नहीं समझाना है, क्योंकि उससे एक बदजन हो जाता है बच्चा। बिल्कुल, और जैसे आपने पहले कहा कि वो एग्रेसिव हो जाते हैं और फिर वो खुदा ना खास्ता गलत करने और गलत छुपाने में माहिर हो जाते हैं। अगर माँ बाप उनको कंफर्टेबल करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, एट द एंड ऑफ डे आई एम श्योर कि वो जो बच्चे हैं जो दिन भर उनका वो रहता है, वो अपने माँ बाप से वो शेयर भी करना चाहते हैं और माँ बाप को स्पेस देना चाहिए। जितने भी बिजी पेरेंट्स हो, शाम को घर आ ही जाते हैं। तो मेरा ये जो एक रिक्वेस्ट रहेगा सब पेरेंट्स से, मैं बीइंग अ पेरेंट मैं ये खुद करती हूँ प्रैक्टिकली, और मैंने इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे हैं कि जब मैं अपने ऑफिस से आती हूँ, और मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, वो थोड़ा देर से आते हैं, बट वी इंश्योर कि हम शाम को उनके साथ घंटा 2 घंटा बैठें और हम उनके साथ दिन भर की बातें करें। उनके स्कूल में आजकल अलग अलग से इंसिडेंट्स होते हैं, एपिसोड्स होते हैं, वो जब शेयर करते हैं और हम अपने स्पेस में जो उसका आंसर करते हैं, वो उनके लिए लर्निंग होती है। और इसी तरह इंटरनेट से हटाने के लिए, जैसे इन्हें टॉडलर से लेके टीनेजर्स की बात की, वी हैव टू गिव देम सर्टेन वेज एंड मीन्स, जैसे क्रिएटिव आर्ट की तरफ कर लें, या हम उनको ऐसे सामान दे दें। देखिए ना, जब हम उनको बस मोबाइल ही प्रोवाइड करते हैं, बाकी सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करते हैं। इंटरनेट इज फुल ऑफ गार्बेज भी और नॉलेज भी, तो इट्स अकॉर्डिंग टू पेरेंट कि वो किस तरह। लेकिन बच्चों की वो उम्र नहीं होती है कि वो इसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे। दैट्स द रोल ऑफ पेरेंट, स्पेशली मदर का जो एक असर रहता है बच्चे पे, और मदर का जो साथ रहता है, ज्यादा फादर से ज्यादा टाइम का रहता है, माँ के ही साथ बच्चे तो इसलिए उनको जो है इस बात पे जो है, घर में माँ हो
वो भी बिजी रहती हैं, बाहर माँ रहे काम करने के लिए बाहर जाए, क्योंकि घर में जो माँ होती है वो उनका भी एक पूरा टाइट वो रहता है, वो भी घर का काम करती है, दूसरे चीजों में जो है बिजी हो जाती है, मसरूफ रह जाती है। जी। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि सिर्फ बाहर वाली जो माँ है जो बाहर जाती है काम सभी करने माएँ के बिजी लिए, रहती सभी हैं। माएँ बिजी रहती अगर हैं। हम जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अगर हम सुबह से कैलकुलेट, जैसे मैंने आपको बार बार कहा, तो एक एग्जांपल भी दी गई है कि जब कभी बोला जाता है कि आपकी वाइफ क्या करते हैं, हम बोलते हैं कुछ नहीं, जो हाउस वाइफ है। तो अगर हम सुबह से स्टार्ट करेंगे, कुछ सुबह नहीं इसलिए कि वो अनपेड होता है ना। जी, तभी मैं कह रही हूँ, सुबह जो माँ उठती है, पहले घर का काम करके बच्चे को तैयार करना, बच्चे का टिफिन, इसी तरह फिर ब्रेकफास्ट तैयार करना, खाना, इसी तरह शाम तक के बच्चे फिर वापस आएंगे, उनको चेंज करना, तो वो हमसे ज्यादा काम करते हैं। तो बिल्कुल। हम उस पैरिटी में नहीं जाते हुए, बट मेरा जो मकसद है कि जो माँ घर पे भी बिजी है या बाहर पे भी बिजी है, और शाम को जो है माँ बाप इकट्ठे बच्चे को टाइम देना चाहिए। माँ का तो सिलसिला चलता डॉक्टर रहता है। साफिया जी, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इंटरनेट एडिक्शन? जी, वी सी आजकल के डेट में दैट बच्चे एकदम वो कट ऑफ हो जाते हैं। हमारा जो सोशलाइजिंग हमारे बचपन में था, हमसे जो बड़े थे हमारे माँ बाप, उनका सोशलाइजिंग बिल्कुल डिफरेंट था। हमारा जो है फिर भी हम जब बड़े बुजुर्ग आते हैं, हम उनके साथ मिलते हैं बड़े क्या बोलते हैं, मिलनसार होके, मगर हमारे जो आज की जनरेशन है वो बड़ी मुश्किल से वो मिक्सअप हो पाते हैं, क्योंकि उनकी सोशलाइजेशन उतनी हो ही नहीं पाती है, वो अपने में ही मगन होते हैं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट, और जो है स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में वो, और उसका इम्पैक्ट है कि जो वो नेट में देखते हैं, इंटरनेट में जो बहुत जो है ग्लोरीफाई करके बहुत सारी बुरी चीजों को भी दिखाया जाता है, तो उसका उस असर उस पे होता है, और उस बच्चा जो है वो ही हासिल करना चाहता है। जैसे आपने रिसेंट इंसिडेंट्स हमारे देखे, अल्लाह उनको मगफिरत करे, जन्नत नसीब करे, हमारे छोटे 2 बच्चे जो है जिनकी डेथ हुई रिसेंट जो एक्सीडेंट से है। तो ये असर है जब वो इंटरनेट पे देखते हैं बड़े वो रेसिंग वाली चीजें, हाँ, बाइक लेके, पेरेंट्स की गाड़ियां लेके, देखे ना उनके पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग कर रहे थे, वो अपने ऑफिसेज में बैठे थे, यहाँ से बच्चे ने जैसे, या बहुत सारे आप देखते हैं बच्चे स्कूटी निकाल लेते हैं। तो ये जो असर है, बहुत बुरा असर है जो हमारे बच्चों पे आ रहा है, बहुत ही एग्रेसिव हो गए हैं नेचर में। नहीं, जैसे आपने बोला आइसोलेशन की जहां तक बात है, आजकल एक अजीब सा हो गया कि बच्चा अपने कमरे में बैठा है या घर के किसी कोने में बैठा है, फिर वो उसको पता ही नहीं है, उसको सुध बुध ही नहीं रहती है कि वो क्या खा रहा है, वो निवाला उठा के कान में जा रहा है, नाक में जा रहा है। मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं, हम बहुत खेला करते थे। जी बिल्कुल, खेला करते थे, आउटडोर गेम्स खेला करते थे, फिर भूख भी बहुत लगती थी, फिर जब खाने को देते थे तो हम टूट पड़ते थे और ये चाहते थे कुछ और भी मिले तो वो भी खाए। आज के बच्चे को भूख भी नहीं लगती है, क्योंकि वो खेल आउटडोर नहीं खेलता, वो खेल भी वर्चुअल मोड पे खेलता है। उससे हाँ, उसके दिमाग की ग्रोथ भी रुक जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल उसी लिमिटेड स्पेस में रह जाता है, और उसका बहुत इम्पैक्ट। और जो बाहर से मेहमान आता है उससे मिलने की तो बहुत ही सवाल ही पैदा नहीं होता है। और आजकल के पेरेंट्स बड़े फिजिकल एलिमेंट्स, जैसे शिरीन बता रहे हैं कि ऑब्वियसली जब उनका खेलना नहीं है, एक्सर्शन नहीं है, एक कमरे के कॉर्नर में वो बहुत कंफर्टेबल जोन में बैठ के, तो उसकी कोई एक्सर्शन नहीं हो रही है, तो उसके बहुत फिजिकल मेंटल जो है असरात है उसके। आजकल के पेरेंट्स बड़े फख्र से कहते हैं, अगर किसी के घर जाया जाए वहां बच्चा ना मिले तो वो फख्र से कहते हैं कि ये जो मेरा बच्चा है, बेटा है या बेटी है, ये किसी से नहीं मिलना पसंद करता है, ये अपने कमरे में फख्र से कहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ऑनर फील करते हैं कि हमारा बच्चा किसी से नहीं मिलना। बताना चाहूंगी कि पेरेंट्स जो उस चीज को बड़ा ग्लोरीफाई करके बोलते हैं, वो अल्टीमेटली अपनी जो कोताहियां छुपाते हैं। उनको ये समझना चाहिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है जो वो बता रहे हैं कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि जो उस एडिक्शन का असर है, और उनका जो उस पे नजर कम रखना। सो देयर आर सर्टन, मेरे ख्याल से कुछ रूल्स बनने चाहिए, बेसिक रूल्स, डूज एंड डोंट्स इन द हाउस, कि जब खाना खा रहे हैं तो सबके मोबाइल्स एक जगह पे, हाँ, वेदर फादर जो बहुत बिजी हैं, जिनके फोन्स बहुत आते हैं, या वो किसी बहुत ऐसे प्रोफेशन में है, मगर खाने टाइम उनका भी फोन जो है शाफी जी आपने बहुत अच्छा कहा। अगर खाने का टाइम है, आजकल हम में अलग अलग खाने का भी टाइम होता है, एक दस्तरखान पे बहुत ही कम या टेबल पे बहुत कम बैठा जाता है। अगर खाना खाने का एक टाइम रखा जाए, फिर उस समय पे मोबाइल फोन सभी एक बास्केट में रखे जाएं, एक जगह सबके रखे जाएं,
ताकि खाना खाते that वक्त हम should be थोड़ी for सी the बात parent as well as for the एक child चीज as मैं well. आपको बताऊं, जो आपने डिनर टुगेदरनेस की बात कही है, आजकल तो बच्चों को बुलाया भी व्हाट्सएप के ही थ्रू जाता है कि आप आइए खाना खाइए, आप जाइए और चाय पीजिए. दिस इज ऑल डन That's थ्रू very सोशल मीडिया. unfortunate. हाँ, दिस इज क्योंकि वेरी हम- अनफॉर्चुनेट. by parents बिल्कुल, by बिल्कुल, parents जी, जी. हाँ. So what role parents should play in controlling and monitoring their children's internet usage or social media? देखिए, सबसे पहले अगेन आप कंटेंट उनका मॉनिटर करें, क्योंकि अगर आपका बच्चा टीनेज में है, आपको नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि आप सबसे पहले तो कंटेंट, बिकॉज जैसा मैंने कहा, इंटरनेट इज फुल ऑफ गार्बेज भी और नॉलेज भी. आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को ज्यादा नॉलेज दें, लेकिन आपको इतनी भी ज्यादा नॉलेज नहीं देनी है कि आप उसको कंप्लीटली रेडिकलाइज ही करके रख दें. एक रिलीजन आपको, क्योंकि आजकल काफी पेरेंट्स हैं वो कहते हैं हमारा बच्चा सिर्फ एक पर्टिकुलर सीरीज सुनना चाहिए जिसमें उसको सिर्फ इस्लामिक स्टोरीज मिले, या जिसमें उसको सिर्फ कुछ ऐसी चीजें मिले जिससे वो कुछ टुवर्ड्स एक फील्ड हासिल कर ले. लेकिन मुझे लगता है आपको आपके बच्चे में इनकलकेट करनी चाहिए मिक्स ऑफ एवरीथिंग. So now that you are educated, you should have a liberal mind and you should help them become an all-rounder for all things together. तो डॉक्टर शाफिर जी, मुझे बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पेरेंट्स को, सोसाइटी को, टीचर्स को, बच्चों को, एज फार एज ओवर एंड एक्सेसिव यूज ऑफ इंटरनेट इज कंसर्न्ड और प्रॉपर यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया? देखिए, जैसे जो बच्चे हैं वो हमारा मुस्तकबिल है, हमारा जो है फ्यूचर है. तो हम सबको एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, सबको जो है इस बात पे बहुत गौर व फिक्र करना चाहिए. और इसके जो है हमें वेज, आई वुड से अ वे फॉरवर्ड इन द वे कि वी इनकलकेट ऑल द गुड थिंग्स इन चिल्ड्रन, बीइंग एज पेरेंट घर पे और फिर स्कूल में, क्योंकि बच्चा मैक्सिमम टाइम स्कूल में गुजारता है. तो टीचर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. और माँ बाप जो अपने बिजी शेड्यूल में जो है टाइम निकाले. मैं बार बार जिस भी प्रोग्राम में आती हूँ और जिस भी प्लेटफॉर्म पे बैठती हूँ वहाँ पे मैं बात करती हूँ कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है. बच्चों को टाइम देना. टाइम होता है रात को स्टोरी टाइम, जो कि अब जिसका कोई तो नामो concept निशान ही नहीं। नहीं है. माएँ जो स्टोरियां नानी दादी जो स्टोरी सुनाती थी. सुनाया जी करती जी थी. जी जी. तो आपको नहीं और लगता कि फादर का भी बहुत, देखिए ना, हम समझते हैं कि अलग अलग प्रोफेशंस में देर से आना, मगर प्लीज एंश्योर एटलीस्ट 1 घंटा बच्चों के साथ बैठें और उनको जो उसमें उनकी जो है ना मॉरल एजुकेशन भी हो जाती है. उनका जो दिन का जो है स्ट्रेस भी निकल जाता है जब वो एक अपने पिलर से बात करते हैं. फादर इज लाइक द पिलर. और माँ तो बिल्कुल हर छोटे छोटे मोड़ पे जुड़ती रहती है सुबह से शाम तक, मगर इकट्ठे बैठ के जब वो 2 लोग उनसे जुड़ते हैं वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है बच्चे पे. या जहाँ पॉसिबल हो तो संडे के अलावा भी हफ्ते में कोई एक ऐसा दिन रखे हाँ, जहाँ पर टुगेदर और बच्चों को बाहर लेके जाए, बच्चों को घुमाए, उनके साथ टाइम स्पेंड करे. अब आज की डेट में ना हम सब अपने अपने लाइफ में इतने मसरूफ हो गए हैं कि अलग अलग से हम जाने लगे हैं कि एज अ फैमिली टुगेदर वो एक बहुत कम जो बनता है. जैसे पुराने टाइम में हमारा वो एक शौक रहता था ना कि अच्छा हमने इतने दिन इस जगह पे जाना, पिकनिक है हमारा. तो आज सब बच्चे अपने साथ ही करते हैं, पेरेंट्स अपने साथ ही करते हैं. टुगेदर वी हैव टू बी. तो इसमें शिरीन एक जी, चीज है ना, क्या कहना चाहेंगी आप एज अ मैसेज सारी सोसाइटी? जी, मैं सबसे पहले शाफिया मैम की बात को फॉरवर्ड थोड़ा सा ले जाना चाहूंगी. मैं कहूंगी कि आज जो आप कह रहे हैं कि आज अकेला, हर इंसान अकेला रहना पसंद करता है, क्योंकि आज आप देखिए, क्योंकि माँ बाप के पास टाइम नहीं है तो लोग दे प्रेफर टू गो फॉर अ सेल्फ डिस्कवरी. जो बच्चे हैं उनको लगता है कि अपने आप के साथ रहना ही, मैं अपने आप का ही चेयर लीडर हूँ. अगर मेरे माँ बाप के पास टाइम नहीं है, ये मेरी मर्जी है मैं कहाँ जाऊं. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कम एंड रिपोर्ट टू योर पेरेंट्स कि आप कहाँ गए क्योंकि थे, ये एक आपने वसी क्या टॉपिक किया. है, इस पे जितना भी बोला जाए कम है, कम बिल्कुल. है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो मखसूस रहता है. आप बिल्कुल. दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. गम है जो तेरी आंख का मंजर तलाश कर, बाहर जो खो गया है अंदर तलाश कर, जो तुझको तेरी जात से बाहर निकाल दे, दहशत जुनून में ऐसा कलंदर तलाश कर. दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज.